اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست احباب، پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ویورز اور سبسکرائبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، عزیز و قارب اور دوست احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد، بلکہ ایک ڈرا گزر گیا، اب یہ دوسرا ڈرا پرسوں انشاءاللہ ہمارا سر پہ ہے، تو انشاءاللہ ان وقفے کے دوران کچھ طبیعت کی ناسازی اور کچھ دل شکستہ ہوا کہ کوشش کے باوجود آپ لوگ نمبر سے دور رہتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کا نمبر لگے، لیکن نمبر نہ لگنے کی وجہ سے دل بوجھل سا ہوا اور روٹین کرنے کو دل ہی نہیں کیا۔ لیکن آپ لوگوں کے پرزور اصرار کے اوپر آپ لوگوں کو ایک بار پھر روٹینز دیکھنے کو ملیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پسند فرمائیں گے۔ دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آتے ہیں روٹین کی طرف۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، عزیز و قارب اور دوست احباب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ تو دوستو، روٹین شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روٹین ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آنکڑا میں صفحہ کون سا آ رہا ہے، کلی میں ہے، جفت میں ہے، آنکڑے کی جمع کس چیز میں آ رہی ہے، کلی میں آ رہی ہے، جفت میں آ رہی ہے، آنکڑے میں ہندسہ کون سا، صفحے میں جفت آئے گا یا کلوز میں جفت آئے گا۔ تو یہ روٹین ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، آتے ہیں سب سے پہلے صفحہ کی طرف کہ صفحہ جفت میں ہے یا طاق میں ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی روٹین کی طرف آتے ہیں کہ اس میں صفحہ کون سا آ رہا ہے۔ 9 اور 1 جو ہے، اس کو آپس میں نفی کریں گے تو جو حاصل جواب آئے گا، اگر جفت ہے تو صفحہ جفت میں ہے، اور اگر طاق میں ہے تو صفحہ طاق میں ہے۔ 9 اور 1 میں سے 1 مائنس کریں تو 8 آتا ہے، تو 8 جفت ہے، تو یہ کہتا ہے اگلا ڈرا جب آئے گا تو اس پہ صفحہ جفت کا آئے گا۔ اب یہاں پہ 19 تھا تو 8 حاصل آیا، اور یہ جفت تھا تو صفحہ جفت کا لگنا تھا، تو 45 کا آنکڑا لگا۔ یہاں پہ 45 میں سے 4 اور 5 میں سے 1 مائنس کریں تو یہاں پہ 1 آتا ہے، اور 1 جو ہے یہ کلی میں ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آگے صفحہ کلی میں آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ 99 9 کا صفحہ لگا، 99 کا آنکڑا لگا۔ یہاں پہ 99 ہے تو 9 اور 9 میں مائنس کریں تو صفحہ جواب 0 آتا ہے، تو یہ کہتا ہے صفحہ جفت میں آنا چاہیے، تو صفحہ جفت میں لگا۔ یہاں پہ 69 ہے تو 6 اور 9 کو آپس میں تفریق کریں تو جواب ہمارے پاس 3 آتا ہے۔ یہ 3 طاق میں ہے، تو یہ کہتا ہے صفحہ طاق میں آنا چاہیے، تو یہاں پہ 37 کا آنکڑا لگا اور 3 کا صفحہ جو ہے یہ طاق میں آیا۔ 37 کو آپس میں جب مائنس کریں گے تو جواب ہمارے پاس 4 آتا ہے، تو 4 جفت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ صفحہ جفت میں آنا چاہیے، تو آگے 21 کا آنکڑا لگا اور 2 کا صفحہ جفت کا کامیاب ہوا۔ 21 کو آپس میں جب تفریق کریں گے، مائنس کریں گے، ایک دوسرے میں سے کم کریں گے، تو 2 میں سے 1 کم کریں گے تو 1 جواب آتا ہے، اور 1 طاق ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اگلے ڈرا میں صفحہ طاق آنا چاہیے، تو یہاں پہ طاق لگا۔ 7 کا ہندسہ 77 کا آنکڑا لگا، اور یہاں پہ 77 کو آپس میں مائنس کریں گے تو جواب 0 آتا ہے، 0 جفت ہے، تو یہ کہتا ہے اگلے ڈرا میں صفحہ جفت آنا چاہیے، تو یہاں پہ 41 میں 4 کا صفحہ کامیاب ہوا۔ 4 اور 1 کو آپس میں مائنس کریں گے تو یہاں پہ جواب آتا ہے 3۔ 3 کہہ رہا ہے کہ یہ کلی ہے، تو یہاں پہ صفحہ کلی یعنی طاق میں لگنا چاہیے۔ اب دوستو، دوسری روٹین کی طرف آتے ہیں۔ تو دوسری روٹین جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ 5 اور 3 کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ جواب ہمارے پاس 8 آیا، یہ جفت ہے، تو صفحہ آگے جفت میں لگنا چاہیے۔ یہ دونوں روٹینیں ہمارے آپس میں میچ کر گئیں، اور یہاں پہ صفحہ جفت کا لگا۔ 45 کا آنکڑا لگا۔ 45 80 90 9 اور 0 کو جب ہم جمع کریں گے تو جواب آتا ہے 9، یہ
ताक है तो ये कहता है सफ़ा ताक पे लगना चाहिए, तो यहाँ पे 99 का सफ़ा लगा, 99 का आंकड़ा लगा और 9 का सफ़ा यहाँ पे कामयाब हुआ। 99, 80, 29, 2 और 9 को जमा करें तो 9 और 2 11, 1 और 1 2, ये जुफ्त है तो ये कहता है सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए। तो ये भी जुफ्त था, ये भी जुफ्त था, तो ये हमारे पास सफ़ा आगे 69, 6 का सफ़ा लगा, 69 का आंकड़ा लगा। 69, 94, 79 में 9 और 7 16, 6 और 1 7, ये कली में आया तो सफ़ा कहता है कि कली में लगना चाहिए, तो यहाँ पे 37 का आंकड़ा लगा, 3 का सफ़ा कामयाब हुआ। 37, 82, 51 में यहाँ पे 5 और 1 है तो इसको जमा करेंगे तो 6 है, ये जुफ्त में है तो ये कहता है सफ़ा जुफ्त में लगना चाहिए, तो 21 का आंकड़ा लगा, 2 का सफ़ा कामयाब हुआ। 21, 77, 39 में 3 और 9 को जमा करेंगे तो 12, 2 और 1 3, 3 ताक में है तो ये कहता है सफ़ा ताक में लगना चाहिए, तो यहाँ पे 77 का आंकड़ा लगा। 77, 37, 53 में 5 और 3 को जमा करेंगे तो ये 8 है, ये कहता है कि ये 8 जुफ्त है तो सफ़ा आगे जुफ्त में लगना चाहिए, तो यहाँ पे 41 का आंकड़ा लगा, 4 और 1 5, यहाँ पे 4 का सफ़ा लगा और 41 का आंकड़ा लगा। अब 41 को जमा करें तो 4 और 1 जो है 41, 46, 54 में 5 और 4 9 होता है, तो यहाँ पे ये कली में है तो ये कहता है सफ़ा कली में लगे। यहाँ भी कली है, यहाँ भी कली है, तो ये श्योर हो गया कि यहाँ पे सफ़ा जो है वो ताक में लगना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 में से हिंसा सफ़े के लिए फाइनल होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं कि इसमें आंकड़े की जमा जुफ्त में आएगी या ताक में आएगी, इस रूटीन को मुलाहिजा करते हैं। तो इस रूटीन को देखने के लिए हम यहाँ 5वें हिस्से का सहारा लेंगे। यहाँ पे 5वां हिस्सा 5 है तो ये कली में है, तो ये कहता है कि आंकड़े की जमा आगे कली में आनी चाहिए, तो यहाँ पे ताक में आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 और 5 45 का आंकड़ा लगा, 4 और 5 9, आंकड़े की जमा ताक में कामयाब हुई। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 45, 80, 90 है, तो यहाँ पे 5वां हिस्सा 9 है, ये भी ताक में है, तो ये कहता है कि आंकड़े की जमा ताक में आना चाहिए, तो यहाँ पे 99 का आंकड़ा लगा, 9 और 9 18, 8 और 1 9, आंकड़े की जमा 9 जो है ये ताक में है। यहाँ पे 69, 94, 79, यहाँ पे 5वां सॉरी यहाँ पे 99, 80, 29 में 5वां हिस्सा 2 का है, तो 2 कह रहा है कि ये जुफ्त है, तो यहाँ पे आंकड़े की जमा आगे जुफ्त में आनी चाहिए, तो यहाँ पे 69 का आंकड़ा लगा, 9 और 6 15, 5 और 1 6, आंकड़े की जमा यहाँ पे कामयाब हो गई। 69, 94, 79 में 5वां हिस्सा 7 जो है ये ताक है, तो ये कहता है कि आंकड़े की जमा जो है वो ताक में आनी चाहिए, तो आगे आंकड़ा लगा 37, 7 और 3 10, आंकड़े की जमा 1 आई। 37, 82, 51, 5वां हिस्सा फिर 5 है, ताक में है, तो ये कहता है आंकड़े की जमा ताक आनी चाहिए, तो यहाँ पे 21 का आंकड़ा लगा, 2 और 1 3, आंकड़े की जमा यहाँ पे ताक आ गई हमारी, ये यहाँ पर भी ये रूटीन कामयाब हुई। 21, 77, 39 में 5वां हिस्सा फिर ताक का है, तो ये कहता है कि आगे आंकड़े की जमा ताक में आना चाहिए, तो यहाँ पे 77 का आंकड़ा लग गया। 77, 7 और 7 14, 4 और 1 5, यहाँ पे एक बार फिर आंकड़े की जमा जो है वो ताक में कामयाब हुई। अब यहाँ पे फिर 77, 37, 53 में 5वां हिस्सा 5 ये ताक में था, तो ये कहता था कि आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए, तो यहाँ पे 41 का आंकड़ा लगा, 4 और 1 5। 41, 46, 54 में 5वां हिस्सा एक बार फिर ताक में है, तो ये कहता है कि आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं कि आंकड़े की जमा अगर ताक में है, सफ़ा हमारे पास ताक में है, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा जो है वो जुफ्त में आएगा या कौन सा हिस्सा ताक में आएगा, ओपन में जुफ्त आएगा या क्लोज में जुफ्त आएगा, या ओपन ताक आएगा या क्लोज ताक आएगा, या दोनों जुफ्त आएगी दोनों ताक आएंगे। इस रूटीन को हम ज़रा मुलाहिजा करते हैं कि आंकड़े में कौन सा हिस्सा जुफ्त ताक में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंकड़े की जमा जुफ्त ताक में देखने के लिए जिस हिसाब से हमने ये सफ़ा जुफ्त ताक के लिए हमने देखने के लिए 1 और 9 को आपस में तफरीक किया था, इसी तरीके से हम 1 और 9 को जमा करेंगे। 9 और 1 10, ये 0 जो है ये कह रहा है कि सफ़ा जुफ्त आना चाहिए, क्लोज कली आना चाहिए, तो यहाँ पे 45 का आंकड़ा लगा।
45 के आंकड़े में 4 जो है ये जुफ्त था और एक क्लोज था, तो कली जो है ये क्लोज कली में ही आया और सफ़ा जुफ्त में आया। 45, 80, 90 में 4 और 5 को जमा करेंगे तो ये 9 है, सिंगल हिंसा है। ये कहता है सफ़ा भी कली में आए, क्लोज भी कली में आए, तो यहाँ पे इसने 99 का आंकड़ा डबल हिंसा मारा, जोड़ा मारा, और यहाँ पे 99, 80, 29 लगा। तो दोस्तों यहाँ पे 99 का आंकड़ा था, तो 9 और 9 को जब हम जमा करें, 9 और 9 18, ये कहता है कि सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए, क्लोज कली में आना चाहिए, तो यहाँ पे 69 का आंकड़ा लगा। सफ़ा जुफ्त में आया, क्लोज कली में आया। 9 और 6 15, 5 और 1 था, दोनों हिंसे कली के थे। ये कह रहा था कि यहाँ पे दोनों हिंसे कली में आने चाहिए, सफ़ा भी कली में आना चाहिए, जुफ्त भी कली में आना चाहिए, तो 37 का आंकड़ा लगा। दोस्तों यहाँ पे 3 और 7 10 है, तो ये कह रहा था कि यहाँ पे सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए, क्लोज कली में आना चाहिए, तो यहाँ पे 21 का आंकड़ा लग गया। 21, 77, 39 लगा। 2 और 1 को जब हम जमा करेंगे तो यहाँ पे 3 है। जैसे यहाँ पे 9 था, सिंगल हिंसा था, तो ये कह रहा था इसने जोड़ा मारना चाहिए, यहाँ पे इसने जोड़ा मारा। यहाँ पे ये 3 था, तो इस रूटीन के हिसाब से इसको यहाँ भी जोड़ा मारना चाहिए था, तो यहाँ पे इसने जोड़ा लगा दिया। 77, 37, 53, 77 का आंकड़ा जोड़े की सूरत में लगाया। तो यहाँ पे 7 और 7 14 है, तो यहाँ पे ये कह रहा था कि यहाँ पे सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए, क्लोज कली में आना चाहिए, तो इसने 41 का आंकड़ा मार दिया। अब दोस्तों 41 के आंकड़े में 4 और 1 को जमा करेंगे तो ये 5 है और ये एक सिंगल हिंसा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे आगे जो भी ड्रा आना चाहिए इस रूटीन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे इसने जोड़ा मारा, यहाँ पे इसने जोड़ा मारा, अब ये सिंगल हिंसा है, तो अब भी इसको यहाँ पे जोड़ा मारना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये आंकड़ा लगा 45 का, फिर 99 का, 69, 37, 21, 77, 41, और अब यहाँ पे कौन सा आंकड़ा लगना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि सफ़ा भी कली में होना चाहिए, क्लोज भी कली में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, इस गलती की मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। यहाँ पे 4 में से 5 माइनस करेंगे तो जवाब आता है 1। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो गई थी, ये थोड़ी सी इस्लाह कर लें कि 4 में से 5 माइनस करें या 5 में से 4 माइनस करें तो जवाब 1 आता है। ये भी कली था, ये भी कली, ताक था, तो सफ़ा ताक पे लगना चाहिए था। अब यहाँ पे ये था तो ये इसको जोट लगाना चाहिए था, तो इसने जोट लगा दिया। यहाँ पे ये 3 था तो इसको यहाँ पे जोट लगाना चाहिए था, तो इसने यहाँ पे जोट लगा दिया। अब यहाँ पे भी ये सिंगल यहाँ पे हिंसा मौजूद है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जोड़ा लगना चाहिए। तो जोड़ा किस हिंसों में है, हमारे पास दोनों हिंसे कली में हैं, तो 11 है, 33 है, 55 है, 77 है और 99, ये 5 आंकड़े बनते हैं। तो इन 5 आंकड़ों में हमारे पास आंकड़े की जमा भी ताक में है, तो यहाँ पे 11 और 33 जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आंकड़े बचते हैं। 3 आंकड़ों में अगर हम देखते हैं तो 55 अब तक नहीं लगा, 77 जो है ये लग चुका है, 99 लग चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ ये 55 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा आप लोग अगर देख ले तो आप लोगों को यहाँ पे 55 का आंकड़ा जो है यहाँ पे लग के जाना चाहिए। मेरे ख्वाहिश है कि यहाँ पे ये 55 का आंकड़ा ज़रूर लगना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 और 5 अगर जमा करें तो 10 आता है और 10 की जमा 1 है। यहाँ पे एक और चीज़ जहन में रख लेनी है आप लोगों ने कि इसके साथ साथ आप लोगों ने अपसेट के तौर पे एक आंकड़ा 91 का भी ज़रूर डालिएगा। 91 का आंकड़ा अगर अच्छा लगे तो ये लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हिस्से हैं ओपन के लिए, 5 और 9। ठीक है, 5 और 9 सफ़ा कली में है, 1 3 5 7 9, और इसके साथ क्लोज भी इस रूटीन के हिसाब से कली में है।
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں، میرے ساتھ بآواز بلند پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔